वनस्पतय शांतिर्विश्वेदेव शांति। ओम इसको सीधा ही शांति रखो, इसको सीधा कर देना बाद में जब बोलने लगेगा। शांति। ठीक है, इधर ही बैठे रहना कैमरा हैंडल करने के लिए, थोड़ा दूर। ईश्वर की स्तुति के साथ हम आशा करते हैं कि यह आयोजन हमें नव चेतना की ओर अग्रसर करेगा। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। दक्षी संस्कृति ज्ञान की केवल एक संगठन नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपराओं के पुनर्जागरण का एक आंदोलन है। यह सनातन दर्शन, परंपरागत विद्या और भारतीय मूल्यों के पुनर्स्थापित करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम, केवल अतीत का विषय नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी दिशा निर्देशक है। ये हमें आत्मनिर्भरता, संतुलन और आध्यात्मिक चेतना के साथ आधुनिक विश्व का नेतृत्व करने की भी प्रेरणा देते हैं। Navchetna is the annual academic event of Dakshi, which is celebrated on the first day of Chaitra every year, marking the beginning of New Year as per the Indian calendar. This year, we are celebrating the third edition of Navchetna. We welcome you to an intellectual exploration, an event where ancient scriptures and art come together, painting a vivid picture of how our ancestors perceived space, identity, and civilization. Through the course of this competition, we will witness thought-provoking presentations that decode the past, reflect upon its relevance today, and perhaps even reimagine its significance for the future. So, let us step into the realm of wisdom and wonder, where ancient texts breathe life into the images before us. Before we begin, it is an honor to introduce the esteemed panel gracing this occasion. Dr. Shri Pundrik Goswami Ji, revered as Shri Manmadhav Gaudeshwar Vaishnav Acharya, is a distinguished spiritual leader and motivational speaker. He hails from the illustrious lineage of Shri Gopal Bhatta Goswami, one of the 6 Goswamis of Vrindavan, personally inspired and initiated by Shri Chaitanya Mahaprabhu. Dr. Pundrik Goswami Ji is the 38th Acharya in the Gaudiya Parampara. Recognizing his contributions to spirituality and society, he was conferred a doctorate by Mansarovar University, Bhopal. Dr. Pundrik Goswami Ji has represented the Gaudiya Sampradaya at numerous government programs and interfaith conferences. Notably, he delivered the first ever Srimad Bhagavad Katha in Ayodhya after the inauguration of Bhavya Shri Ram Mandir. Furthermore, he holds the distinction of conducting the first Srimad Bhagavad Katha ever organized by Vice President of India at the Vice Presidential Stage. His mission is to inspire the youth by connecting them with India's rich religious and devotional heritage. May I now have the honor of introducing our guest of honor, Professor Dinesh Khattar, Principal, Kirodimal College, University of Delhi. Professor Khattar is an alumnus of the Hindu College and a gold medalist in both BSc and MSc examinations of the Delhi University. He is a recipient of the prestigious Professor Ram Bihari Gold Medal, Dr. Radha Krishnan Memorial National Teachers Award, Dr. APJ Abdul Kalam National Dedication Award, and many more. Professor Khattar has launched more than 20 books, with 2 books on abstract algebra. He has been a member of the Academic Council of the University of Delhi, several committees of the University Grants Commission, and research group on ancient Indian mathematics. The next we have with us is our respected principal madam, Professor Savita Roy. Ma'am is an alumnus of Miranda House, University of Delhi, and she is currently a part of Department of Physics, Daulat Ram College. Dr. Narendra Kumar.
Dr. Naresh Kumar is the convener of the IPS unit of Daulat Ram College. He is the assistant professor in the Department of Biochemistry at Daulat Ram College. Dr. Kumar has completed his PhD from AIMS New Delhi. He has authored several research papers. Next, we have with us Mr. Akshat Kumar Bhadoria. Akshat Kumar Bhadoria is a graduate in history from Kirorimal College, University of Delhi, and currently pursuing Master of Arts in History from University of Delhi itself. He hails from Gwalior, Madhya Pradesh, and currently lives in Delhi. He was the college ambassador to the Election Commission of India in 2024. He is an independent researcher. He is an independent researcher and an oral historian and has published many articles and research papers in several journals. He is also the author of 2 books named as Shudra, Ek Divya Bird and Kante Ka Vriksh. He has written more than 150 poems in Hindi and was felicitated by the Education Minister of India for his writings. He is the founder and director of Dakshi. We are deeply honored to have them with us today. As a token of our appreciation, we now move forward with the felicitation of our esteemed guests. Their contribution to the field of knowledge and heritage preservation inspire us all, and we are privileged to have them here with us. We invite our respected Principal Ma'am, Professor Savita Roy, to felicitate Dr. Kundrik Goswami ji for his invaluable contributions. We now call upon Dr. Naresh Kumar to felicitate our guest of honor, Professor Dinesh Khattar, whose unwavering support and visionary leadership continues to inspire and guide us towards excellence. We also request our director, Mr. Akshat Kumar Bhadoria, to felicitate our respected Principal Ma'am for her guidance and support. इसी क्रम में हम श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे अक्षय कुमार भदौरिया जी को सम्मानित करें।
इसी क्रम में हम डॉक्टर श्री पुंडरिक गोस्वामी जी महाराज से निवेदन करते हैं कि वे अक्षत कुमार भदौरिया जी को सम्मानित करें। टिपिकल है। हम प्रोफेसर दिनेश खट्टर जी से निवेदन करते हैं कि वे दाक्षी के चीफ एग्जीक्यूटिव श्री अमित जी को इस अवसर पर सम्मानित करें। अब हम आमंत्रित करते हैं सविता मैम को, जो दाक्षी दौलत राम कॉलेज की प्रेसिडेंट निहारिका जी को सम्मानित कर इस आयोजन को और गौरवान्वित करेंगी। आप भी पैर चाहिए, आप भी यहाँ पे We extend our invitation to respected Principal Professor Savita Roy to deliver the welcome note and extend her warm greetings to all present. आज एक दिव्य सुबह सवेरा हुआ, कॉलेज कुछ ज्यादा ही अलौकिक लग रहा है। इतने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के हमारे प्रांगण में आने से हम गौरवान्वित हुए। हमारा हार्दिक स्वागत इस कॉलेज में आपका। और ये एक अजीब संयोग है या कहें कि बच्चों का इनिशिएटिव है कि हम लोगों ने नव वर्ष, आज पहला दिन है छुट्टी के बाद, 2 दिन की छुट्टी हो गई, तो पहला दिन है, तो नव वर्ष जो हिंदू कैलेंडर का है वो मनाने के लिए आप सब यहाँ दौलत राम प्रांगण में इकट्ठे हुए। मुझे आप सब बच्चों को बधाई और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश कैलेंडर में तो बोलते हैं और हमें हिंदी कैलेंडर के अनुसार भी बोलना चाहिए। 2082 में आपका स्वागत है। हम कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन इस तरह से एक सोसाइटी जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बेस होकर के कुछ कार्य कर रही है, इसका अनुमान मुझे आज पहली बार लगा। और आप सब बच्चों को इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत बधाई और आशा है आप बहुत सब कुछ सीख के जाएंगे। ज्यादा ना कहते हुए हम सुनना चाहेंगे गुरु जी को। धन्यवाद। We are honored to invite our guest of honor for the day, Professor Dinesh Khattar, to share his insightful note inspiring us with his profound wisdom and vision.
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर पुंडरीक गोस्वामी जी, दौलत राम कॉलेज की प्राचार्य आदरणीय सविता राय जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक अक्षित जी और नरेंद्र जी, सम्मानित अतिथिगण, सभी उपस्थित प्रमुख शिक्षक और प्रिय विद्यार्थी। जैसा कि अभी सविता जी ने कहा, आज हम सनातन नव वर्ष विक्रमी संवत 2082 के शुभ आगमन का आज उत्सव मना रहे हैं। यह केवल एक नव वर्ष का स्वागत नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सनातन जीवन दर्शन का पुनः स्मरण करने का पावन अवसर है। विक्रम संवत केवल एक काल घटना पद्धति नहीं है, बल्कि भारत की गौरवशाली परंपरा, धर्म, राष्ट्र चेतना और शौर्य का प्रतीक है। यह दिन हमें केवल एक नए वर्ष की शुरुआत का संकेत नहीं देता, बल्कि यह समय है अपने सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक संगठन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दोहराने का। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने कर्तव्यों को पुनः स्मरण कर अपने आचरण और सेवा के माध्यम से समाज को दिशा देने का हमें संकल्प लेना चाहिए। हमारे प्राचीन ऋषियों और मनीषियों ने काल गणना की एक अद्भुत परंपरा स्थापित की, जिसका आधार पंचांग, खगोलीय गणनाएं और भारतीय सभ्यता का चक्र है। यह काल गणना केवल समय का बोध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य, परिश्रम और राष्ट्र आराधना का मार्ग भी दिखाती है। हमारा सनातन धर्म हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिखाता है। यह धर्म केवल पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें कर्तव्य, सेवा और राष्ट्र प्रेम का मार्ग दिखाता है। अभी हाल ही में हिंदू नववर्ष के अवसर पर नागपुर में परम पूजनीय सर संचालक श्री मोहन जी भागवत ने देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए अपने संबोधन में उन्होंने कहा, धर्म इस देश का सत्व है और सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र जब जब उन्नति करता है, उस धर्म के लिए ही प्रगति करता है, और अब यह ईश्वर की इच्छा है कि सनातन धर्म का उदय हो। उन्होंने यह भी कहा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और यह एक सच्चाई है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का अर्थ है भारतीय। मोहन भागवत जी ने उन्होंने इस अवसर को शुभ संयोग बताते हुए कहा, आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन है। दूसरे संघ प्रमुख माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी के नाम पर चल रहे सेवा प्रकल्प के विस्तार का भी आज कार्यक्रम है, और प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर उपस्थित होना, यह सारे शुभ योग है। उनके अनुसार समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा, उच्च नैतिक मूल्यों का पालन और सत्य निष्ठा के साथ कार्य करना संगठन के उस उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है जिसमें समाज को संगठित कर सात्विक गुणों को के माध्यम से राष्ट्र की उन्नति की जाए। प्रधानमंत्री जी ने भी संघ के योगदान की सराहना करते हुए कहा, संघ का इतने वर्षों का परिश्रम फलीभूत हो रहा है। संघ की इतने वर्षों की तपस्या विकसित भारत का एक नया अध्याय लिख रही है। इन विचारों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी ने हिंदू नववर्ष के अवसर पर भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। आज के इस शुभ अवसर पर प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों की आधुनिक विश्व में प्रासंगिकता और दाक्षी की भूमिका, इस विषय पर मैं अपने विचार साझा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
इस सार्वजनिक व्याख्यान सत्र के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं अक्षय भंगुरिया जी और दौलत राम कॉलेज भारतीय ज्ञान प्रणाली के संयोजक डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा जो वेदों, उपनिषदों, आयुर्वेद, योग, गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन और साहित्य में समृद्ध है, आज भी अपनी अद्वितीय प्रासंगिकता रखती है। इन प्रणालियों ने न केवल हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में योगदान दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान, चिकित्सा और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। भारतीय गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली और शून्य की अवधारणा प्रस्तुत की, जो आधुनिक गणित और कंप्यूटर विज्ञान की नींव है। प्रसिद्ध गणितज्ञ लाप्लास ने कहा था, हमें उन हिंदुओं का आभारी होना चाहिए जिन्होंने महान दशमलव प्रणाली की खोज की। आयुर्वेद, जो विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, आज भी स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुश्रुत और चरक जैसे विद्वानों के ग्रंथों में वर्णित सिद्धांत और उपचार पद्धतियां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। योग, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने की एक विधि है, आज विश्व भर में अपनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था, सभी जीवन योग है। भारतीय दर्शन, जिसमें अद्वैत, वेदांत, सांख्य, योग और अन्य दर्शनों का समावेश है, इसमें भी आत्मा, ब्रह्मांड और अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया है। श्री अरबिंदो ने कहा था, सच्चा ज्ञान सोचने से नहीं प्राप्त होता, यह वह है जो आप हैं, यह वह है जो आप बनते हैं। दाक्षी प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों और विरासत को पुनर्जीवित करने और उन्हें आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह संगठन विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भारतीय ज्ञान की महत्ता को उजागर कर रहा है, जिससे युवा पीढ़ी अपनी समृद्ध विरासत से परिचित हो सके। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैयात्मनो बन्धुरात्मैव विपुलात्मना। अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, ताकि स्वयं को गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु है। अब यह श्लोक हमें आत्मनिर्भरता और आत्मविकास का संदेश देता है, जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियां न केवल हमारे अतीत की धरोहर हैं, बल्कि वे वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक हैं। इनकी गहन समझ और अनुप्रयोग से ही हम न केवल व्यक्तिगत स्तर पर समृद्ध हो सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। इस दिशा में दाक्षी और भारतीय ज्ञान प्रणाली दौलत राम कॉलेज जैसे संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमारी समृद्ध विरासत को पुनर्जीवित करने और उसे आधुनिक विश्व के साथ समन्वित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं पुनः अक्षय भंगुरिया जी और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी को इस सार्थक सत्र के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सभी मिलकर भारतीय ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित और संवर्धित करने में अपना योगदान दें। विक्रम संवत 2082 के आगमन के साथ हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा, समर्पण और निष्काम भाव से करेंगे, ताकि हमारा व्यक्तिगत विकास समाज और राष्ट्र की उन्नति में
एक योगदान दे सके। हमारा देश ज्ञान, विज्ञान और नवाचार की भूमिका निभा रहा है। भारत ने दुनिया को गणित, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष, दर्शन और आध्यात्म की अद्भुत धरोहर प्रदान की है। भारतीय ज्ञान प्रणाली केवल अतीत का गौरव नहीं है, बल्कि भविष्य की आधारशिला भी है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world is not broken up into narrow fragments, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. यह कथन हमें यह सीख देता है कि नए भारत का निर्माण केवल ज्ञान, आत्मनिर्भरता और नवाचार से ही संभव है। आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, तो हमें आत्मनिर्भरता और नवाचार के पथ में आगे बढ़ना होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, यह सदी भारत की सदी है। आत्मनिर्भर भारत ही हमारे उज्जवल भविष्य की नींव रखेगा। इस कथन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम अपने ज्ञान, परंपरा और आधुनिकता का समन्वय करते हुए कार्य करेंगे, तो भारत पुनः विश्व में नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। विक्रम संवत 2082 का ये शुभ अवसर हमें नव संकल्प, नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें अपने इतिहास से सीखते हुए अपने भविष्य का निर्माण करना होगा। हमारे महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था, जो अपनी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं को भूल जाता है, वह कभी भी महान नहीं बन सकता। इसलिए हमें अपने गौरवशाली संस्कृति को अपनाना होगा, अपनी जड़ों को पहचानना होगा और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के अपने लक्ष्य की ओर हमें अग्रसर होना होगा। आज जब संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा राष्ट्र केवल आर्थिक और सैन्य रूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी सशक्त बन सके। तो आइए हम इस नए वर्ष में अपने कार्यों और आचरण से भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना को आत्मसात करते हुए अपने उच्च आदर्शों और मूल्यों को जीवन में अपनाकर और उन्हें जीकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। संत तुलसीदास जी ने कहा था, परहित बस जिन्हें केवल माही, तिन्हें कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही। अर्थात जिनके मन में परोपकार बसता है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम सबको मिलकर इस नव वर्ष में इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प होना होगा, ताकि हमारा राष्ट्र सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बन सके। आदरणीय गुरु जी गोलवलकर once said, a nation must always preserve its culture, for culture is the soul of the nation. The Dakshi movement aligns beautifully with this thought. By bringing focus to the rich heritage that forms the backbone of Indian society, it rekindles the pride in our traditions while making them accessible and relevant to the contemporary times. And to our students, I urge you to take inspiration from today's discussions, engage deeply, and immerse yourself in the rich intellectual legacy of India. As just now I was hearing Kritika and Megha also mentioned, let us remember that our knowledge systems are not just relics of the past, but vibrant sources of guidance for the future. So as we move forward with today's program, let us keep in mind the words of Param Pushniya Dr. Keshav Rao Baliram Hedgewar, who said, the roots of all progress and strength lies in self-reliance and national pride.
May Navchetna inspire us all to be the torch bearers of our rich legacy and catalyst for bright future. Thank you, and let us together make this event a memorable one. Thank you. Inviting Shri Pundrik Goswami Ji Maharaj on stage to share his views on Indian Robotics and its and present times. नमस्कार आप सभी को नव संवत्सर नव वर्ष 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक बार मुस्कुराइए सबसे पहले की बात है। मैं प्रणाम करता हूँ सबसे पहले शिक्षण संस्थान की मुख्य प्रधानाचार्य महोदया को, प्रसाद जैसे पूर्व बहुत निष्णातता से अपनी भावना तथा बहुत सारे दिव्य पुरुषों के अनुभवों को अपनी उद्बोधन में संकलित करके हम सबको प्रेरणा देने वाली परम विद्वान और समवर्ती शिक्षण संस्थान के मुख्य मार्गदर्शक महोदय को भी प्रणाम करूं, तथा दाक्षी के दो स्तंभ मंच के दोनों तरफ बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत वंदन करूं, तथा यहाँ नवचेतना से युक्त नव संवत्सर की तरह ही नवनवायमान अनेक युवक और युवती मेरे मित्रों के समान उपस्थित हैं। आप सबको भी जय श्री राधे। मैं बहुत सारे अपनी निमाई पाठशाला के विद्यार्थियों को देख रहा हूँ, तो मैं एक बार तो भ्रमित हूँ कि दौलत राम है, दाक्षी है, निमाई पाठशाला है। इसलिए लाभ लेना चाहिए। आइए हम आप सब लोग मिलकर एक श्लोक की वंदना करें जो हमारी पाठशाला में आप सबने सीखा है। सरल श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय and you should be unstoppable. This is what I want. So, बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरे पूर्ववर्ती वक्ता ऑलरेडी कह चुके हैं। आज फर्स्ट अप्रैल है। बस मैं इतना ही कहूँगा, सत सनातन धर्म के पथ पर चलते रहिए, अप्रैल फूल मत बनिए। तो दुर्भाग्य है जब आज अप्रैल के दिन नया फूल खिल सकता था, उसको पुरानी परतंत्रता ने फूल बना दिया। हम नवचेतना से युक्त नव भारत में पुष्प की तरह पल्लवित हो सकते थे। मैं अभिभूत हूँ दौलत राम के पुस्तकालय को देखकर, और दाक्षी के माध्यम से हमारी सुसंस्कृति को शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने बताने। कल परसों ही किसी से बैठकर वार्तालाप हो रहा था कि आज किस प्रकार युवाओं के मध्य शिक्षा की प्रणाली के बीच हम लोग भारतीय मंत्रणाओं को, भारतीय विचारों को किस प्रकार से प्रेषित कर सकें। और इस बात से मैं आनंदित हूँ कि एक दिल्ली का बहुत यशस्वी शिक्षण संस्थान भारतीय नववर्ष को विज्ञान, ज्ञान और अध्यात्म तीनों के ही संतुलन, तीनों ही संगम से यहाँ पर समायोजित कर रहा है। ये बहुत हर्ष। विश्व भर के शिक्षण संस्थानों में मैं बोलने गया हूँ, भगवान की कृपा से परदेश के विश्वविद्यालय में भी पढ़ा हूँ, स्वदेशी भी रहा हूँ, और सब जगह मैंने एक बात का अनुभव किया। सामान्यतः हमारे आसपास उत्पन्न होने वाला वातावरण हमें वस्तु के प्रति सहज कर देता है।
बहुत सारे लोग अगर धोती कुर्ता में होंगे तो बहुत सारे लोग उसी वेश को पहनने में सहज हो जाएंगे। बहुत सारे धोती कुर्ताओं के बीच में कोई टक्सीडो पहन के आ गया तो हंसों में बगुला दिखेगा। तो हम आसपास उस प्रकार का जब वातावरण क्रिएट करते तो व्यवस्था सहज हो जाती। मैं सच बात बताऊं, मुझे आदरणीय अक्षित जी ने जब सूचना भेजी तो मेरे उद्बोधन का टाइटल अंग्रेजी में भेजा था, एंशिएंट वैदिक विजडम एंड इट्स रेलेवेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो मैं अंग्रेजी में सोच कर आया, पर जब मेरे पूर्व वक्ता ने इतनी सुंदर हिंदी बोली तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया। सारे समायोजन को इस भारतीय परिवेश में करने का अनुभव किया तो मन में विचार आया कि क्यों ना नव संवत्सर है, हिंदी वर्ष है, तो हिंदी में बात की जानी चाहिए। और निमंत्रण अंग्रेजी में था, वार्तालाप हिंदी में है। आज के समय यही आवश्यकता है। ऊपर से अंग्रेजी जितनी छापनी है छाप लीजिए, भीतर से हिंदी होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और क्या पॉइंट तो बहुत सारे लिख के लाया, पर आदरणीय ने सब महत्वपूर्ण, प्रोफेसर दिनेश जी ने सब कुछ महत्वपूर्ण कह ही दिया। वापस दोहराने का कोई लाभ नहीं है। पर मैं निवेदन करूं, नव संवत्सर के परिवेश में 2-3 चीजें अपने जीवन में जोड़ लीजिए। सबसे पहली बात, हमारा वसन, व्यसन और भाषण, इन 3 चीजों में संस्कृति के परिवेश की आवश्यकता है। अभी बिल्कुल लिखा तो मैं बहुत कुछ अलग था, फोन भी इसलिए लाया था, पर खड़े खड़े मेरे मन में 3 शब्दों ने स्पंदन को स्पर्श किया। सबसे पहला शब्द है वसन, व्यसन और भाषण। केवल इन 3 शब्दों में संस्कृति को हमें आसन देना है। इन 3 विषयों में आसन देना है। सब कुछ अपने आप घटित होने लगे। हम ये नहीं कह रहे, मेरे बाबा कहते थे धोती पहना आदमी अंग्रेजी बोले और टक्सीडो पहना आदमी संस्कृत बोले। यही एक यूनिवर्सल ग्लोबल ह्यूमैनिटी को डेवलप करने का सर्वोत्तम साधन है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर कभी कभी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हमें आधुनिक वेशभूषा को पहनने में कोई समस्या नहीं। मैं भी कॉलेजेस में, और एक बात आपसे और कह दूं, कुछ समय तक दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट रहा हूँ कैंपस में। पर कुछ दिन तक बढ़िया जीन्स पहन के जाता था। कुछ दिन बाद प्रोफेसरों को पता चला कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने खुद ही कहा कि कभी धोती पहन के भी आ जाएगा। खैर, वो धर्म की सेवा तो मैं उसी समय से कर रहा हूँ। बड़ों ने मुझे बचपन से शिक्षा दी। जैसा कि परिचय में आपको बताया, एक प्रवाही परंपरा का एक छोटा सा धारण करने वाला और आगे ले जाने वाला समारोह। सो 3 चीजें मैंने आपसे कहा। वसन, वसन शब्द का अर्थ होता है हम पहनते क्या है, हमारी वेशभूषा। हमारी वेशभूषा में संस्कृति की सुगंध आनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि रोज आए, पर कोई तो दिन निश्चित हो सकता है। If a Sunday can be a fun day, it's a day of wearing your, I would say, night suit, the cozy one. Generally, everyone wants to spend their Sunday wearing the night clothes, isn't it? Though I don't have Sunday because जब सब लोग फ्री होते हैं तो मैं ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ। जब सब बिजी रहते तो अपन फ्री रहते। If a Sunday can become a fun day, then I would say if a Monday can become a Monday, entertainment day, then at least कोई तो एक सप्ताह दिन में होना चाहिए
मंगलवार तो हो सकता है जब हम विश्व मंगल की बात करें। कोई तो एक ऐसी व्यवस्था, कोई तो एक ऐसी जगह, कोई तो एक ऐसा अभ्यास दिन भर का हो सकता है जब हमारे वसन में हमें संस्कृति का दर्शन हो, हमारे पहनावे में हमारी संस्कृति का दर्शन हो। मुश्किल इरेशनल बात ये लगती है कि जब हम एक वेशभूषा को ही धार्मिक मानते हैं, ढकोसलाबाजी मानते हैं, और दूसरी वेशभूषा को आधुनिक मानते हैं। आपको किसी भी वेशभूषा के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा हुआ है। निश्चित रूप से इस भारत में लगभग 38 प्रकार से धोती पहनी जाती है, और प्रत्येक धोती को पहनने की विधा वहां की जलवायु के ऊपर निर्भर करती है। जहां रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट के ऊपर और घोड़े के ऊपर ज्यादा सवारी करनी होती है, वहां धोती कुछ इसी तरीके से चढ़ जाती है जैसे अभी मंगलाचरण करने वाले बालक ने पहन रखी थी, क्योंकि घुड़सवारी मेरी वाली करने में विश्व को सब कुछ दर्शन हो जाएगा, परिवेश को बदलना पड़ेगा। सदा वेशभूषा किसी न किसी परिवेश से प्रकट हुई है। अगर हम धोती और कुर्ता को एक धार्मिक वेशभूषा समझते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ समय में कृष्ण स्कूल का भी स्टूडेंट रहा हूं। एक 3 पीस सूट भी एक रिलीजियस ड्रेस है। आप चर्च के भीतर संडे प्रेयर में प्रॉपर ड्रेस कोड के बिना भीतर जा नहीं सकते। मुझे उससे कोई द्वेष नहीं है, अच्छी बात है, उन्होंने उसको कायम रखा है। पर थोड़ा तर्क रहित बात ये हो जाती है जब हम उसको कॉर्पोरेट वेशभूषा मान लेते हैं, उसको आधुनिक वेशभूषा मान लेते हैं, उसको मॉडर्न भारत की वेशभूषा मान लेते हैं। ये समस्या, उसको पहनने में भी कोई समस्या नहीं है, बढ़िया से बढ़िया पहनिए। 2-4 ब्रांड मैं भी सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। बट मुश्किल ये होती है जब कभी अगर अवसर मिल जाए भारतीय वेशभूषा धारण करने का, तो उसी सौभाग्य से धारण कीजिए, उसी प्रदर्शन से धारण कीजिए जिस प्रदर्शन से आप आज आधुनिक वेशभूषा को धारण करते हैं। उसी व्यवस्था से बहुत अच्छी तरह, हालांकि जिसकी आदत नहीं होती और वो पहनकर आ जाए तो दूर से पता चल जाता है। जिसने पहली बार पहनी हो बेचारा स्पीच भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि आधा हाथ तो उसका धोती क्यों पहने होगा। अभ्यास जारी रखिए, धीरे धीरे उस परिवेश को शुरू कीजिए जहां आपकी वेशभूषा में भारतीय दर्शन की प्रतीति है, और उसका एक बहुत अद्भुत वैज्ञानिक संदेशण है। हम कहते हैं एक भारतीय लोकोक्ति है ना, अरे भाई अलर्ट हो जाओ, अब तो अपनी कमर बांध ले, तैयारी करनी हो ना। बड़े से बड़ा योद्धा, मल्ल योद्धा, पहलवान भी, रेसलर भी शरीर को वस्त्र से मुक्त रखता है पर अपनी कमर को बांध के रखता है। कमर बांध ले। जब विचार की व्यवस्था आती है तो भारत ने सिर बांधने का विज्ञान उत्पन्न किया, साफा बांध, सिर बांध। जब पराक्रम की बात आती है, बीइंग अलर्ट की बात आती है, तब विषय होता है कि कमर बांध। धोती के परिवेश में वो विज्ञान हमें सदा सावधान रखता है। धोती इस तरीके से बांधी जाती है जैसे हमारे शरीर में स्वास्तिक बनता है। स्वास्तिक के रूप में जहां आप जाए वहां स्वस्थ स्थापित हो सके। हालांकि मैं केवल धोती का प्रचार करने नहीं आया, आप जो भी भारतीय वेशभूषा उसका सम्मान कर सकते हैं, जिस भी राज्य की हो, जिस भी राज्य की। तो वस्त्र में सबसे पहले संस्कृति की आवश्यकता है। दूसरी बात मैंने आपसे कही, वचन में संस्कृति की आवश्यकता है। वचन से अर्थ है भाषा, वचन से अर्थ है विचार। आप कभी कभी ये जरूर सोचिए कि आप किस भाषा में सोचते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप कौन सी भाषा बोलते हैं ये कोई आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं। थोड़े दिन कुछ लोगों के साथ रह लीजिए, आपको वो भाषा बोलनी आ ही जाएगी।
मैं पंजाब में, गुजरात में, कन्नड़ में जहां जाता गया, या कभी कभी भारतीय बाहर देशों में भी जाता गया, थोड़ी देर रहते रहते उनकी भाषा, उनका एक्सेंट, थोड़े बहुत शब्द अपने आप पकड़ में आ गए। थोड़ी सी कन्नड़ भी आ गई, थोड़ी सी सुहेली भी आ गई, जाम्बो हवारिया को मजदूर लिसाना, वहां जाके बोलते लोग खुश हो जाते। भाषा कोई बड़ी बात नहीं। भारत के इतिहास में एक राजा होता था जिसका तोता भी संस्कृत बोला करता था, शूद्रक, और बड़े से बड़े विद्वान भी उस राजा से मिलने तब जाते थे, पूछ लेते थे तोता सो रहा है ना, तो अगर तोता ही टोक दे तो नाक ही कट जाएगी। संस्कृत भाषा बड़ी उन्नत है। तो मैं निवेदन करूं, आप सोचते किस भाषा, आपकी सोच जिस भाषा में होगी, प्रत्येक भाषा शब्दों के अनुसार उसकी संस्कृति को कैरी करता है। बहुत सिंपल एग्जांपल आपसे कहूं, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आयु के अनुसार आप उद्बोधन करते हैं, तू, तुम और आप। परंतु अगर आप केवल अंग्रेजी में विचार करते हैं तो ये सम्मान का भेद आपके मस्तिष्क में समाप्त हो जाता है, क्योंकि चाहे 2 साल का हो, चाहे 200 साल का, एवरीवन इज यू, केवल सब यू है। आपका विचार किस परिवेश में उत्पन्न होता है। अच्छी बात है, कुछ समय पहले तक लोग अंग्रेजी में सोच रहे थे, कितने भी हिंदी बोल रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ अंग्रेजी एक्सेंट आने लगता है। पर अगर आपका विचार भारतीय है तो अंग्रेजी में भी काम चल ही सकता है। हमारे वृंदावन में मंदिर है तो गाइड होते थे। औरंगजेब ने हमला किया गोविंद देव मंदिर के ऊपर, 7 मंजिल की इमारत थी, महाराज शिवाजी और सावजी से उसका संबंध है। औरंगजेब ने हमला किया तो 4 मंजिलें गिरा दी। बाद में कई अंग्रेज आते थे आगरा जाने वाले, तो गाइडों को हिंदी में तो समझा नहीं पाते थे, तो बेचारे थोड़े दिन में उनसे मिलते मिलते सीख गए। कहते थे गोविंद देव टेम्पल, औरंगजेब केम, हिट 4 डाउन 3 स्टैंडिंग। इतने में समझ जाते थे क्या होता। शब्द तो चल जाएगा और उसकी अनुभूति आपकी अंतस चेतना में किस रूप में प्रकट होती है। मैं आपसे निवेदन करूं, विचार हिंदी में करिए और आगे बढ़ना तो विचार संस्कृत में कीजिए। इसलिए अपनी कथा में मैं कह रहा था संस्कृत में कोई गाली नहीं। आप सोच एकमात्र विश्व में संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें दूर दूर तक कोई गाली ही नहीं है। और मजे की बात ये, गाली का भी सात्विक मीनिंग बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति बोला गधा, उसने कहा थैंक यू। मैं क्यों? बोले गम गणपति मंत्र धार्यते गधा। गणपति के गम मंत्र को जो अपने कंठ में धारण करता है उसको गधा कहते हैं। अब मजे से बोलना है सबको गधा। अद्भुत बात है। जिस दिन हम संस्कृत में प्रवेश करके अपने शास्त्रों का अभ्यास करें, आप पहली अनुभूति ये पाएंगे, मैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से भी कहूंगा, उस दिन पहली अनुभूति आपको ये मिलेगी कि भारतवर्ष पूरी दुनिया से 100 साल आगे है। हमारे यहाँ होने वाला प्रत्येक आविष्कार, उसके साथ संस्कृत में एक शब्द मौजूद है। जैसे विमान, जैसे वाहन, जैसे अणु, संस्कृत में एक शब्द मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि उसके संबंधित कोई वस्तु हमारे ऐतिहासिक स्वरूप में होगी, तभी उसके लिए हमारे पास वोकैबुलरी हो। जैसे मोबाइल के लिए कोई वोकैबुलरी नहीं है, यू हैव टू क्रिएट अ वर्ड फॉर मोबाइल। इवन मोबाइल इज नॉट अ नाउन टू मोबिलिटी, अ मोबाइल फोन, अ मोबिलिटी, पर हमने उसको नाउन बना दिया प्रोनाउंसिएशन में। मोबाइल मींस समथिंग लाइक दिस, बट टेक्निकली इट्स अ मोबाइल फोन। संस्कृत में बोलना हो तो चलित दूरभाष बोलिएगा। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो हो सकता है आधुनिक दुनिया में ऐसी बनी है जिसके लिए हिंदी में भी उसके लिए कोई ना कोई संस्कृत में भी शब्द का यथावत प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अमेरिका को अमेरिका ही बोला जाए, उसके लिए उस नाउन के लिए पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। परंतु आज विज्ञान जो बड़े से बड़ा आविष्कार कर रहा है उसके लिए संस्कृत में एक शब्द मौजूद है।
इसलिए मैं निवेदन करूं अपने वचन में संस्कृति को आसन दीजिए, अपने वचन में संस्कृति को आसन दीजिए। और मैं अंतिम बात कहकर शांत करूंगा, अगर आप चाहेंगे तो, और वो है अपने व्यसन में भी संस्कृति को आसन दीजिए। व्यसन, हम किस चीज के व्यसनी है सर? ये विचारशील बात है। भारत सदा व्यसन रहा है, किसी न किसी विषय में व्यक्ति को सदा जीवन में व्यसन रहता ही रहता है। पर आज दुर्भाग्य की बात है, बड़े से बड़े स्थानों पर लोग नशे की व्यसन। आज बहुत बड़ा चैलेंज है, मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। हमारे शास्त्रों में मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा समाधान खड़ा है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो जो मैं लिख लाया था थोड़ा इंग्लिश बोली दो। बंधुर आत्मस्तस्य येन तामित्तदे जनाः। एक प्रकार से ऋग्वेद की श्रुति कहती है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया। आज मेंटल हेल्थ विश्व का इतना बड़ा केंद्र है क्योंकि जीवन कोई आधार नहीं है। देखिए, एग होता है ना, एग दो प्रकार से टूटता है, एक बाहर से टूटता है, एक अंदर से टूटता है। जब बाहर से टूटता है तो केवल आमलेट बनता है, तो जब भीतर से टूटता है तो जीवन को पैदा करता है। आप कहां से टूटना चाहते हैं? आप कहां से टूटना चाहते हैं? हम सब माँ के शरीर का एक एग ही है, एग ही थे पहले, और फिर उससे निकले। दुनिया ने अवसर दिया कि आप बाहर से टूटना चाहेंगे तो लाइफ आमलेट बन जाएगा, कोई खा जाएगा। और अगर भीतर से विकास किया तो आप सावरकर जैसे, बोस जैसे, भगत सिंह जैसे, अब्दुल कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े महापुरुष जिनका हमने पूर्व वक्ता ने जिन सब का रेफरेंस दिया, वो सब वो हैं जिन्होंने अपने भीतर से एक नव जीवन को उत्पन्न करके इस राष्ट्र का निर्माण। व्यसन किसका है हमारे जीवन में? तो मनुस्मृति का श्लोक कहता है, व्यसनानि बहु सन्ति, महाभारत का श्लोक कहता है, व्यसनानि बहु सन्ति व्यसन केवलद्वयम् विद्या अध्ययनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम। दुनिया में व्यसन बहुत सारे हैं, पर सारे व्यसन जीवन को पतन की तरफ ले जाते हैं। परंतु अगर कोई व्यसन पालना हो तो दो ही बात, या तो जीवन में विद्या अध्ययन का व्यसन हो, या तो अध्ययन का व्यसन हो, या सेवा का व्यसन हो। ये दो व्यसन इस देश को विश्व गुरु बनाते आए हैं और विश्व गुरु बनाते रहेंगे। आसन, वचन, व्यसन और भाषण। वचन, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, आप बोलिए। व्यसन, वचन, व्यसन और भाषण। वचन, वचन और भाषण तो एक है। पहनना, फिर वचन, विचार और तीसरा व्यसन, जिसकी आदत। मेरे को पता नहीं, मैं तो पूछा था दिया जी। आप बड़ी कृपा करी, मैं आभार व्यक्त करूं, कुछ अतिशयोक्ति की हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पाठशाला के बच्चों को आभार मंडाय जय हो। दाक्षी के बालकों को सनातन धर्म की जय हो। जोश बोल रहा है। और दौलत राम वाले बालकों को भारत माता की जय। सभी की जय जयकार करके अपनी बात समाप्त करो। होपफुली सी यू सून। मुझे बस एक बात सॉरी कहते हुए कहूँगा सभी व्यवस्था से, एक मेरा और वचन है और बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है, तो मैं अगर ठीक लगे, आई नो आयोजन का प्रोटोकॉल होता है, पर मैं अगर ठीक लगे प्रधानाचार्य महोदय और अक्षित भैया सभी से मुझे जाने की अनुमति मिल जाए तो दूसरे लोग भी प्रतीक्षा ज़्यादा नहीं करेंगे। Thank you, sir, for your enlightening address. Your
everyone to be seated. I request everyone to be seated. Ma'am. Everyone please be seated, and thank you for being such a wonderful audience for session 1. Stay with us as we have some more